Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm a maths teacher. Now we will start revision of lesson number 2 and lesson number 3. But first we will start lesson number 2, addition and subtraction. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 2, addition and subtraction. So now we will see what we had learned in this lesson in our last class. So lesson name is the addition and subtraction. So first we had done the recall exercise. In the recall exercise we had done the 3-digit number add with 3-digit number and 4-digit number with 4-digit number. So now look at here first that example number 2, how to solve that. 3 plus 9 12, 12s are 2, 1 is the carry. 1 plus 4 5, 5 plus 3 8 and 3 plus 6 9. So answer is 982. Then these already we had done. Now look at example number 4. 3 plus 6 9, then 9 plus 8 17, 17s are 7, 1 is the carry. 1 plus 9 10, 10s are 0, 1 is the carry. Then 1 plus 6 7, 7 plus 2 7 plus 2 9. So answer is 9079. So this is the 3-digit number and this one is the 4-digit number. Then after we had done the addition of that 4-digit number in 3 numbers, means 3 number के साथ 3-digit number को addition. These also we had done. Then after subtraction also we had done. Then after we had done the addition of the 4-digit number with 5 answer. When we are adding the 4-digit number, so we will get 5-digit answer. Now look at here, that already I gave you homework. So now look at here this example. 8888 उसमें ऐड करना है 3333. सो बोथ आर द 4-digit नंबर. नाउ 8 plus 3 11, 11 सा 1, 1 is the carry. Now 1 plus 8 9, 9 plus 3 12, 12 सा 2, 1 is the carry. 1 plus 8 9, 9 plus 3 12, 12 सा 2, 1 is the carry. Now 1 plus 8 9, 9 plus 3 12. So how much getting answer? 12,212. Answer is we are getting the 12,221. So this is the how much digit? These are the 5-digit number. So when we are adding the 4-digit number with 4-digit number, so we will get answer is the 5-digit number. Then after we had done the addition of that of 6-digit number. This is the 6-digit number, addition of 5-digit and 6-digit number. So this also we had done. Then exercise 2.2 ये भी हमने डन किया था. इसमें भी क्या था, नंबर्स थे, उसमें एडिशन किए. तो नाउ लुक एट हियर वन एग्जांपल नाउ वी विल सॉल्व. सो नाउ लुक एट हियर एग्जांपल नंबर 14. ये मैंने आपको होमवर्क दिया था. सो नाउ लुक एट हियर 8 plus 3 11, 11 plus 5 16, 16 are 6, 1 is the carry. 1 plus 1 plus 9 4, 1 plus 9 10, 10 plus 4 14, 14 are 4, 1 is the carry. 1 plus 9 10, 10 plus 8 18 and 18 plus 6 18 plus 6 24, 24 are 4, 2 is the carry. 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 13, 13 are 3, 1 is the carry. Now 1 plus 6 7, 7 plus 3 10, 10 plus 1 11, 11 are 1, 1 is the carry. Then 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. So answer is 6,13,446. हमें आंसर कितना मिल गया है? 6,13,446. So this is the some example from exercise 2.2. Then after we had done the complete the following. So that also we had done. So now look at here one example. 3 tens plus 8 ones equal to now 2 tens and 18 ones. हमने 18 ones कैसे लिख दिया है? ये जो 3 है उसमें से हमने क्या किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये जो 3 है, ये जो 3 नंबर्स है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया है. और ये जो 8 है उसके सामने वो 1 लगा दिया. ये जो 8 है
इसके सामने वो 1 लगा दिया। सो दोनों को ऐड करेंगे, 3 10s और 8 1s को। 3 10s मीन्स 13 एंड 8 1 मीन्स 8। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38। नाउ 2 10s मीन्स 20 एंड 18 1s मीन्स 18। दोनों को ऐड करेंगे तो 38। सो दोनों का आंसर कितना मिल गया है 38 मिल गया। मतलब ये और ये दोनों भी क्या है सिमिलर है। Then after next is the subtract. So look at here, for 17,384 from a 35,575। 35,575 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17,384। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना मिलता है यहाँ पे 18,191। So these also we had done. Then after we had done the exercise 2.3. So one example we will see from this exercise. So now look at here, we will see that 20 numbers. Okay, so 20 number questions is 9,68,000 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6,57,416 को। नाउ यहाँ पे 0 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे 9 9 है, ठीक है, तो हम 10 को कट करके भी कर सकते हैं। 9 + 10 - 6 4, 10 - 6 4। देन 9 - 1 8, 9 - 4 5, 9 - 4 5। now 7 - 7 0, now 6 - 5 1 and 9 - 6 3। so answer is 3,10,584. Answer is 3,10,584. So this we had done. Then after we had done the estimating sum. You learn rounding the number is previous chapter. So estimating में क्या होता है, राउंडेड करते हैं हम, जो भी नंबर है उसको राउंडेड करते हैं। नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 होता है, नियरेस्ट 10 होता है और नियरेस्ट 100 होता है। सो नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 2। ये ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया है, 3 4 सॉल्व किया है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 188 है, 188 है और 198 है। तो हमें क्या करना है, एस्टिमेटिंग नंबर करना है। राउंडेड 10 है, क्वेश्चन में क्या है, राउंडेड 10 है। सो 188 हम क्या करेंगे, अभी नोटबुक में सॉल्व करके देखेंगे। 188 है और सेकंड नंबर कौन सा है, 198 है। हमें क्या करना है, राउंडेड नंबर करना है, नियरेस्ट 10। सो 188 और 198। सो ये जो नंबर्स है 188, सो हमें नियरेस्ट 10 चाहिए तो हम 88 लिखेंगे, 1 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो 88 है। 88 ये नंबर, ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 80 और 90 के बीच में आता है। 88 किसके नियरेस्ट है, 90, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी राउंडेड वैल्यू 190। अभी ये जो 98 है, ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 90 एंड 100, 90 एंड 100 के बीच में आता है। मतलब इसका 198 का राउंडेड वैल्यू कितनी है, 190 और 200 के बीच में आता है। ये किसके बीच में आता है, 198, 190 और 200 के बीच में आता है। तो इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो 093, 390, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 + 8 16, 1 इज़ द कैरी, 9 + 9 18, 18 से 8, 1 इज़ द कैरी। सो हाउ मच, 386। अभी हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच में एस्टिमेटिंग डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 390 में से 386 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें डिफरेंट निकालना है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस निकालना है। अभी 390 में से 386 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 10, 10 माइनस 6 4 और यहाँ पे 0 0। मतलब इसका एस्टिमेटिंग डिफरेंस कितना आ गया है, 4 आ गया है। ये नियरेस्ट 10 है। अगर नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 100, नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर बी इज द एस्टिमेटिंग ईच सम ऑफ द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर विद द एक्चुअल सम्स। अभी हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 100 करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका राउंडेड वैल्यू हम निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5, दिस वन 3621 है और दूसरा नंबर है 3210 है। फर्स्ट नंबर इज द 3621 एंड सेकंड नंबर इज द 3210 है। अभी हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 100। किसके नियरेस्ट निकालना है, 100 के बीच में आना है। तो 100 बोलेंगे तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अभी 621 है, 600 क्या है 21 है। ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 600 एंड 700 के बीच में आता है। ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 600 और 700 के बीच में आता है। अगर नंबर 650 के बाद होता, अगर नंबर 650 के बाद होता तो वो 700 की नियरेस्ट वैल्यू है। अभी यहाँ पे 21 है तो ये किसकी नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी, 600। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। नाउ 200 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 200 एंड 300 के बीच में आता है। अभी यहाँ पे बैठा है कि 650 से जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट वाले नंबर की राउंडेड वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे 250 तक अगर नंबर है तो वो किसकी नियरेस्ट वैल्यू होती, 300 की। लेकिन यहाँ पे 250 से छोटा है 210, मतलब ये किसकी राउंडेड वैल्यू हो जाएगी, 200 की। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे 0 + 0 0, देन 6 + 2 8 एंड 3 + 3 6, 6800। अभी जो एक्चुअल आंसर है वो निकालेंगे, 1 देन 2 + 1 3 देन 6 + 2 8 एंड 3 + 3 6। सो आंसर कितना मिल गया है, 6331 है। उसमें से हम माइनस करेंगे 6800 को। अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 31 एस्टिमेटिंग नंबर आता है। एस्टिमेटिंग आंसर कितना आ रहा है, 31 हमारा एस्टिमेटिंग आंसर आ रहा है। सो दिस इज द एस्टिमेटिंग डिफरेंट। सेम एक्सरसाइज 2.5 में भी है, नियरेस्ट हम 10 वाले निकालेंगे और नियरेस्ट 100 निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। एस्टिमेटिंग की प्रोसीजर सेम है जो एस्टिमेटिंग की है, मतलब दोनों का आंसर निकाल के ये जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे ही डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। So these already we had done. Then story sum. Then after we had done the story sum. So now look at here. So we will see now example number 4. That already done. So example number 4, that I was given you homework. So we'll see that there are the 45,363 males, 43,562 women and 18,565 children in the town. So what are the what are the population of the town? टाउन की पॉपुलेशन कितनी है वो निकालनी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन कैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, मैंस के, वुमेन्स के एंड चिल्ड्रन की हमें पॉपुलेशन दी है और वहाँ पे पूछा है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है टाउन की वो निकालना है। तो उसके लिए हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो जो टाउन है उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कितने मैन है, मैन 45,363 है। देन उसके बाद वुमेन कितने हैं, 43,562 एंड चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन इक्वल टू 18,565 है।
अभी तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन। अभी ये मैं रफली लिख रही हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेंगी। सो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 × 0 1 इज द कैरी। देन 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19, 19 × 9 1 is the carry. 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 1 14, 14 × 4 1 is the carry. Then 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 × 7 1 is the carry. 1 + 4 5, 5 + 5 10. सो टोटल कितनी पॉपुलेशन हो गई, 1,07,490। 1,07,409 ये टाउन की पॉपुलेशन हो गई है टोटल। देन आफ्टर वी हैड डन द स्टोरी सम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन भी डन की थी, फिर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की भी डन किया था। सो यहाँ पे देखो वन एग्जाम्पल वी विल सॉल्व। सो नाउ what should be subtract from a 3,56,435, so we will get 2,38,595। तो इसमें से हमें ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें से ये वाला नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 7। सो एग्जाम्पल नंबर 7, look at here. So this already I have gave you homework, so now we will solve that example number 7. Example number 7 क्या है, हमें क्या करना है, 3,56,435 है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,38,595 को। So now look at here, 5 + 5 0. Now 3 - 9 it is possible, so we will write here 3 and here 30. 13 - 9 4. 3 - 5 is possible, so we'll write here 5 and here 13. 13 - 5 8. 13 - 5 8. 5 - 8 it is possible, so we'll write here 4 and here 15. 15 - 8. 15 - 8 7. Now 4 - 3 1 and 3 - 2 1. सो अगर हम ये वाला नंबर कौन सा 2,38,595 में अगर हम 1,17,804 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिल जाएगा, तब हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। सो दिस ऑलरेडी डन। देन आफ्टर वी हैड डन द एक्सरसाइज 2.8। 2.8 में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भी एग्जाम्पल देखे थे। सो उसमें से एग्जाम्पल नंबर 1 लुक एट हियर। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो हमने क्या किया था, पहले एडिशन की थी, देन उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया था। पहले एडिशन की थी, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन किया था। देन आफ्टर वी हैड डन द मैथमेटिक्स ए। मैथमेटिक्स ए के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे एंड कुछ होमवर्क दिए थे। देन मैथमेटिक्स बी में हमने MCQs को सॉल्व किया था। देन सम क्वेश्चन आंसर मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो दिस वी हैड डन ऑलरेडी। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। लेसन नंबर 3 इज द मल्टीप्लिकेशन. So first is the recall multiplication by a 2-digit number. Multiplication by a 2-digit number. So now look at here. For that all of you need to learn nicely table. उसके लिए आपको टेबल को लर्न होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के एग्जाम्पल है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टेबल को लर्न होना ज़रूरी है। सो नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 4। 519 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81, 81 का 1 लिख देंगे, 8 कैरी कर देंगे। 9 × 1 9, 9 + 8 17, 17 × 7 1 इज द कैरी। 9 × 5 45, 45 + 1 46. So answer is 4,671. Answer is 4,671.
So this already we had done. Then after we had done the property of the multiplication. So now look at here, first property of the multiplication. The product does not change if the order of the number multiplied is changed. When we are taking the two numbers and that two numbers, we will change the order of the number. For example, 5 into 7 equal to 35 and 7 into 5 equal to 35. So now look at here, in the both number have only changing the order of number, then also we are getting the answer is same. Then property number 2, the product does not change when the grouping of number change. When we are taking the two more than two numbers, means for example we are taking the three numbers, after the taking we had three numbers, we will make the group of the two numbers and one is the writing outside. We are making the group of two numbers and one we will write in the outside, so that time we are getting the answer is same. For example, now look at here, 2 multiplied by 3 multiplied by 4. So first we are making the group of 2 and 3, and here we are making the group of 3 and 4. So both time we are getting the answer is same, is 24. Then property number 3, the product of 1 and any number is number itself. When we are multiply 1 in any number, so we will get answer is the itself number. When we are multiply 1 in any number, so we will get answer is the itself number. Then property number D, the product of 0 and the any number 0. When we are multiply by 0 in any number, so we will get answer is the 0. So in the exercise 3.1, there I have a property of multiplication example. So now look at here, this we had done already. So now look at here, this example number 6. So 595 equal to 520 and 555. Sorry, 555 multiplied by, filling the blanks equal to 520 multiplied by 555. So यहाँ पे 525, यहाँ पे 525, यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा. So this already we had done. Then multiplication by 10, 100 and 1000. So when we are multiply by 10, 100 and 1000 in any number, so first we will, whatever the number we will multiply, means for example all of you look at here. First we will write here 6 multiplied by 10, 6 multiplied by 100, and next is the 6 multiplied by 1000. 6 multiplied by 10, 6 multiplied by 100 and 6 multiplied by 1000. So first we will multiply by 6. 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 6. अभी 10 में कितने जीरो आते हैं 1 जीरो आते हैं, तो हम उसके राइट साइड पे 1 जीरो नाउ 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, और 2 जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देंगे. 2 जीरो क्योंकि यहाँ पे कितने 100 में कितने जीरो आते हैं 2 जीरो आते हैं. देन 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, तो इसके राइट साइड पे हम 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 200 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 200 है, तो हम क्या करेंगे 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 200 में कितने हैं 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देंगे. देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4000 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4000 है, तो हम क्या करेंगे 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4 24, और 4000 में कितने जीरो है 3 जीरो है, तो हम यहाँ पे 3 जीरो पुट कर देंगे. देन 6 मल्टीप्लाई बाय 30 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 30 है, तो हम क्या करेंगे 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे. तो अगर 10 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दूसरा नंबर है तो वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ पे हम जितने जीरो उसके राइट साइड पे है उतने जीरो हम उस नंबर के बाजू में हम पुट कर देंगे. So this is the multiplication 100, 10, 100 and 1000. Then after multiplication 200, 300 up to 2000, 3000 up to 9000. So these all already we had done. Then after we had done that quiz question. Then after we had done the multiplication by 3-digit number.
So now we will see one example whichever I already gave you homework. So now look at here, we will solve this example from the exercise 3.3 example number 10. So 728 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 299 को। 728 को मल्टीप्लाई करेंगे 299 के साथ। सो फर्स्ट हम ये जो 9 है 1 वाले प्लेस का, इसके साथ ये वाले नंबर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, 72 सा 2 एंड 7 इज़ द कैरी। 72 का 2 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएंगे। 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, 18 plus 7 25, 25 is a 5, 2 is the carry. Then 9 into 7. Now 9 into 7, 9 into 7 63, 63 plus 2 65. Now we will put here 0. यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। क्यों 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जो 9 है, ये कौन से प्लेस पे है? 10 वाले प्लेस पे है। जो 9 है ये कौन से प्लेस पे है? 10 वाले प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 1 वाली प्लेस है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। जो 1 वाली प्लेस है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। नाउ 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, 72 सा 2 and 7 is the carry. Now 9 into 2 18, 18 plus 2 25, 25 is a 5, 2 is the carry. Then 9 into 7 63, 63 plus 2 65. Now we will put here 20. यहाँ पे 20 पुट करेंगे बिकॉज दैट 2 इज़ द प्लेस ऑफ 100। यहाँ पे हमने 20 पुट क्यों कर दिया है? क्योंकि अभी ये जो 2 है ये 100 वाले प्लेस पे है। ये जो 2 है ये 100 वाले प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 और 10s वाले प्लेस पे हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मीन्स ये क्या हो गया है, ये दोनों हम 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 200 वाले प्लेस है। मतलब ये दोनों भी क्या है, 0 है। जैसे हम अगर हमें सिंगल मल्टीप्लिकेशन करना है तो 728 को हम पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन 728 को हम 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 9 वाले प्लेस 9 ये 10 वाले प्लेस पे। और 729 को हम 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और तीनों का जो भी आंसर होगा उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं वैसे कर रहे, हम क्या करें, ये जो 200 है यहाँ पे 20 पुट करेंगे क्योंकि ये 2 कौन से प्लेस पे है, ये 2 हमारे 100 वाले प्लेस पे। नाउ 2 इंटू 8 16, 16 जा 6, 1 इज द कैरी। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 इंटू 7 14. Now we will do addition. 2 plus 0 plus 0 2, 5 plus 2 7, then 5 plus 10 6, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 is 6, 1 is the carry. 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 plus 1 17, 17 is 7, 1 is the carry. 6 plus 4 10, 10 plus 1 11. So answer we are getting answer 1,17,672. So this is the 3-digit number. Then after we had done the story sum. So now look at here, we will see example from that exercise. The apple grow in the farm are packed in the 302 boxes. Each boxes contain 256 apple. How many apples there are? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 302 बॉक्सेस है। एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आ रहे हैं? 256 एप्पल्स आ रहे हैं। तो हमें निकालना है कि 302 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितने बॉक्सेस है? 302 है। तो हम, और एक बॉक्स में कितने एप्पल्स है? 256 है। 256 को अगर हम 302 तक ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने एप्पल्स है। तो इजी मेथड क्या है, हम 302 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 300
302 को हम 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने एप्पल से कितने एप्पल की ग्रोथ हुई है, ग्रोन हुई है। सो अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है 77,312। आंसर कितना आता है 77,312। So this we had done. Then after we had done the estimating nearest 10 100. Then हमने एक राउंडेड नंबर किया था, एक राउंड अप किया था, एक राउंड डाउन किया था. So now look at here, one time we will see that one example. First we will see from लुक एट हियर एक्सरसाइज 3.6 का. यहाँ पे हमने राउंडेड नियरेस्ट 10 किया था. जैसे राउंडेड नियरेस्ट 10 है, 76 और 18 है. इसके राउंडेड वैल्यू कितने आते हैं 80 एंड 20. दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था. दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 110 यहाँ पे पुट कर दिया. देन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया था. देन उसके बाद राउंडेड 10 100 है, 100 है तो 453 है, 453 है और यहाँ पे 152 है. तो इसकी राउंडेड नियरेस्ट 100, 500 और 200 उनका मल्टीप्लिकेशन किया, एक्चुअल का मल्टीप्लिकेशन किया था. देन उसके बाद अगर क्या है वहाँ पे हमें क्या करना था, वन नंबर को हमें राउंड अप और राउंड डाउन करना था. यहाँ पे राउंड अप एंड राउंड डाउन. सो मतलब 45 ये कौन से टू नंबर के बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में आता है. 40 और 50 के बीच में आता है. तो इसके हमने राउंडेड अप वैल्यू 50 ली. अभी 35 ये भी राउंडेड वैल्यू है 30 एंड 40 की. अभी हमें डाउन लेना है इसलिए राउंडेड वैल्यू हमने क्या लिए है 30 लिए. सो दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन किया है. देन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किया था. देन यहाँ पे भी सेम राउंडेड 100 की निकाली. देन उसका मल्टीप्लिकेशन किया, वन राउंड अप नंबर लिया है, वन राउंड डाउन नंबर लिया है. देन उसके बाद हमने एक्चुअल का मल्टीप्लिकेशन किया था. सो दिस वी हैड डन. देन मैथमेटिक्स ए दिस आल्सो वी हैड डन. देन स्टोरी सन दिस आल्सो वी हैड डन. So this is our lesson number 2 and lesson number 3. So I hope all of you nicely understood lesson number 2 and lesson number 3. Thank you and have a nice day.